السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ جوتا کیسے پہنا جائے؟ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تعالی جب جوتا پہنے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فلیبدا تو وہ آغاز کرے، ابتدا کرے، بالیمین دائیں کے ساتھ، واذا نزع اور جب وہ اتارے، فلیبدا تو وہ آغاز کرے، بالشمال دائیں کے ساتھ۔ پہننا ہے تو دایاں پاؤں اور اتارنا ہے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں اتارے۔ ولتکن الیمنا اور ہوگا دایاں قدم، اولہما پہلا، تنعل جو پہنا جائے، وآخرہما اور آخر، تنزع اتارا جائے، یعنی دایاں قدم جو ہے پہلے پہنا جائے اور جب اتارنے کی باری ہو تو دایاں قدم بعد میں جوتے سے نکالا جائے۔ جی اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، اس کو تین تین بار دہرائیں، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین۔ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اس کو بھی دہرائیں۔ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ، جس کو یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، وہ میں خاموش ہوں کہ آپ یہ یاد کریں، جس کو یہ حدیث مبارکہ یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ إذا طالع أحدكم. چلیے ماشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک جوتے میں چلنا کیسا ہے؟ ایک جوتے میں چلنا، وعنہ قال اور انہی سے روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يمشي احدكم في نعل واحد، آپ اس متن کو نا ایک بار یاد کریں، میں کال لے لوں۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی آ رہی ہے آواز سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت، وہ ایک کال تھی، وہ مجھے لینا پڑی. اچھا، ہم پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمشي احدكم في نعل واحد. ابھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ والد یا والدہ کی کال ہو تو وہ لے لینی چاہیے. جتنا بھی انسان کسی اہم پروگرام میں بیٹھا ہو، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کی کال فوراً لے لینی چاہیے. اتفاق ہے سب کا؟ جی جی استاد. جی جی. جی. لا يمشي احدكم في نعل واحد. لا يمشي، نہ چلے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی نعل واحد، ایک جوتے میں، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، اور وہ دونوں جوتوں کو پہنے، او لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، یا دونوں جوتوں کو اتار دے. دونوں جوتے پہن کر چلے یا پھر دونوں جوتے اتار کر ہی ننگے پاؤں چلے، ایک جوتے کے اندر نہ چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو علت ہے، اس کا جو سبب ہے، وجہ ہے، وہ بھی بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الشیطان یمشی بالنعل الواحدہ، شیطان جو ہے وہ ایک جوتے کے اندر چلتا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سلسلہ صحیحہ. سلسلہ صحیحہ پہ 348 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. اس میں الفاظ کیا ہے؟ ان الشیطان یمشی بالنعل الواحدہ، کیونکہ شیطان ایک جوتے میں چلتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو ہمیں تو شیطان کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوتے میں نہ چلا جائے. اچھا، مجھے کچھ دیر ہوئی سنا تھا غالباً شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں نا تو ایک جوتا ہمارا پاس پڑا ہوتا ہے اور دوسرا جوتا تھوڑا سا دور پڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، کیونکہ زیادہ لوگوں کے جوتے پڑے ہوتے ہیں، تو اتنے میں پھر اپنا جوتا بسا اوقات دائیں بائیں ہو جاتا ہے، ایک قریب ہوتا ہے ایک دور ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم قریب والا جوتا پہن لیں اور جو دور ہے ایک دو قدم چل کر تو اس کو جا کر پہن لیں؟ جی، تو کیا جواب ہونا چاہیے اس سوال کا؟ نہیں ایسا نہیں کر سکتے. جی، تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے. کیا کہا؟ ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. جی، لا يمشي احدكم في نعل واحد، اس کو تین تین چار چار بار پڑھیں. لا يمشي احدكم في نعل واحد. وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا. جس کو یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ کسی کا جوتا نہیں پہننا چاہیے. یہ بات تو بھی ہم نے کی نہیں ہے اس طرح کی. سوال کیا ہے؟ میں مزید نہیں سمجھ پایا. اچھا، ہم آگے چلتے ہیں. ٹخنوں سے مردوں کا کپڑا نیچے لٹکانا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ
इला मन जर्र थौबहु खुयला, मुत्तफकुन अलैह। इसको तीन तीन चार चार बार पढ़े। ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्र थौबहु खुयला, ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्र थौबहु खुयला। ला यंजुरुल्लाहु नहीं देखेगा अल्लाह ताला, इला मन उस शख्स की तरफ, जर्रा जिसने लटकाया, सऊबहू अपना कपड़ा, मुराद तहबद है, शलवार है, वगैरह वगैरह। खुयला तकब्बुर करते हुए, जिसने तकब्बुर करते हुए, जिस मर्द ने तकब्बुर करते हुए अपना कपड़ा टखनों से नीचे रखा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ऐसे इंसान की तरफ देखेगा ही नहीं। मुकम्मल अच्छा हदीस जो शेख है ना साहब, उसमें। जी। इसमें एक बात ये कि आजकल तो तकरीबन हमारे यहाँ रोजमर्रा में देखें जो पैंट वगैरह पहनी जाती है, तकब्बुर का नहीं होता, लेकिन आदतन जो है वो हमारे बेटे और मतलब इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो पहन लेते हैं। तो उस बारे में क्या हुक्म है? जी, मैं अभी इसी बात की तरफ आना चाह रहा था कि बाज लोग ये कहते हैं कि मैंने तकब्बुर से नहीं ऐसा किया। इसके लिए जो है ना, सुनन अबी दाऊद में 4078 नंबर रिवायत है। उसमें अल्फाज क्या है? फ़इन्ना इस्बाल अल इज़ारी मिन अल मखीलती, कपड़ा नीचे लटकाना ही तकब्बुर है। कोई माने ना माने, कहता जी मैं तकब्बुर की वजह से नहीं करता। अच्छा, तो क्या नाउज़ु बिल्लाह सहाबा किराम तकब्बुर की वजह से करते थे कि उनको नबी अलैहि इस्लाम ने डांटा? हम तो बड़े पाक साफ हुए, बड़े पाकबाज हुए। तो आपने फरमाया है कि फ़इन्ना इस्बाल अल इज़ारी मिन अल मखीला। इसी तरह हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी में रिवायत जो नकल की है उसके अल्फाज हैं, इय्याका व जर्रल इज़ार फ़इन्ना जर्रल इज़ारी मिनल मखीला, कपड़ा टखनों से ना रख कर घसीटो, क्योंकि ऐसा करना ही तकब्बुर है। कोई हजार बार कहता रहे कि मेरा इरादा तकब्बुर का नहीं था, लेकिन वो है ही तकब्बुर। इसलिए मर्द का जो कपड़ा है वो हमेशा टखनों से ऊपर होना चाहिए। वो नमाज की हालत में हो, वो भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, लेटा हुआ हो, किसी हालत में भी हो, जो उसने कपड़ा लिया हुआ है, खा वो शलवार है, खा वो कमीज है, खा वो सऊदी जुब्बा है, या कोई भी चीज है जो उसने ऊपर ली हुई है, वो टखनों से नीचे नहीं जानी चाहिए। अच्छा, गुज़श्ता रिवायत में जो जूते का हमने लफज पढ़ा है उसमें अलामा इब्ने हजम ज़ाहरी और बाज दीगर अहले इल्म ने कहा है कि जुराब, मोजे वगैरह उनका भी यही हुक्म है कि एक मोजे में, एक जुराब में भी नहीं चलना चाहिए। सॉरी मोहतरम, जो फिर जुराब पहनी होती है उसका क्या? सिर्फ कपड़ा ऊपर लटका रहे, जुराब आ सकती है उसके ऊपर? हाँ, जुराब ऊपर से नीचे को नहीं है, ये नीचे से ऊपर आप पहनते हैं। जी। हाँ, तो ये उसमें नहीं है। ये वो कपड़ा है जो ऊपर से नीचे का आता है, मर्द का शलवार हो या कोई और कपड़ा उसने लिया हुआ है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, लंबी तोप पहनी हुई है, सोप जिसको बोलते हैं। हम आगे चलते हैं। खाना जो है वो दाएं हाथ के साथ खाना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से ही रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अकल अहदुकुम, जब तुम में से कोई एक खाए, फलियकुल बियमीनिही, तो अपने दाएं हाथ के साथ खाए। व इदा शरिबा, और जब पिए, फलियशरब बियमीनिही, तो अपने दाएं हाथ के साथ पिए। कोई भी मशरूब हो, पानी हो, दूध हो, कोई भी चीज हो। फ़इन्न शैतान, क्योंकि शैतान यअकुलु बिशिमाली ही, अपने बाएं हाथ के साथ खाता है, व यशरबु बिशिमाली, और अपने बाएं हाथ के साथ पीता है। अखरजहु मुस्लिम। शैतान का मामला है वो यकीनी तौर पर हमसे मख्फी है, लेकिन जितना मामला हमें शरीयत ने उसके बारे में बता दिया है, जितना तारुफ करवा दिया, उस पर हमारा ईमान है। तो शैतान खाता पीता है, जाहिर है खाता पीता है तो वो पेशाब भी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोया रहता है, सुबह के वक्त उठता ही नहीं है, बाल शैतान फी उज़ुनी, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। जी। और भी कई दलाइल हैं जिससे मालूम होता है कि शैतान खाता पीता है। तो शैतान खाता पीता है, लेकिन अपने
बाएं हाथ के साथ। ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, आयत मुबारक को मद्देनजर रखें तो भी बात मालूम होती है कि शैतान की पैरवी हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें दाएं हाथ के साथ खाना पीना चाहिए। इसको भी दोहराएं बार बार, जिसको याद हो जाए वो हाथ खड़ा कर लें। इसको दोहराएं और पीछे सारी रिवायतें एक एक बार दोहराएं। मैं दोबारा एक कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हम आगे चलते हैं। वान आमिर बिन शुआइब अन अबीही अन जद्दीही, आमिर बिन शुआइब अपने बाप से और वो अपने दादा से बयान करते हैं। कौल, उन्होंने कहा, ये अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न आस हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल खाओ, वशरब और पियो, वलबस और पहनो, व तसद्दक और सदका करो, फी गैर सरिफिन बगैर इसराफ के, वला मखीला और बगैर तकब्बुर के। मालूम हुआ खाने पीने पहनने में दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक इसराफ फजूल खर्ची और दूसरा तकब्बुर। ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। कुल वशरब वलबस व तसद्दक फी गैर सरिफिन वला मखीला, इसको भी दोहराएं, याद कर लें। अल्लाह तबारक व ताला की ये नेमतें हैं, नेमतें इस्तेमाल करके तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ना ये कि आदमी नेमतों का ज़िया शुरू कर दे, और ना ही ये इंसान को जचता है कि वो इन नेमतों पर बहुत ज़्यादा नाज नखरे और तकब्बुर करता फिरे। ऐसा भी तो हो सकता है आनन फानन अल्लाह ताला ने जितना कुछ उसको दिया सारा कुछ एक बार ही ख़त्म कर दे। और मौजूदा दौर में मुशाहदे में भी ये बातें आती हैं कि आदमी कितना माल दौलत वाला होता है, लेकिन एक जलजला आया, मकान जो है वो ज़मीन बोस हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, और वही जो करोड़ों अरबों का मालिक है वो लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। तो फिर तकब्बुर किस बात का। जी आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना था। आगे नया बाब शुरू होगा इंशाल्लाह, बाबुल बिर्रि वसीला। वो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा ये सब क्लियर है, इसमें किसी का कोई इश्काल हो तो बात कर सकते हैं। सर मतलब हम एक सवाल पूछना है इसी जूते के हवाले से। जैसे हम लोग मस्जिद नबवी या इन मकामात या इसके अलावा कहीं पर इज्तिमा वाली जगह पर जाएं, वो मैंने जो मैसेज में पूछा है वो मैं इसी चीज के वो पूछना चाह रही थी कि वहां पर अगर आपको एक जूता नहीं मिल रहा या आपका जूता थोड़ा सा दूर है, तो वो मैं उसके बारे में पूछ रही थी। हमें चल के उसके पास जाना चाहिए अपना एक जूता उठाकर दूसरे जूते के पास? एक तो पहली बात ये। दूसरी ये कि वहां से हम किसी और का पहन कर आगे जा सकते हैं, लाइक मतलब जैसे ये दूसरी जगह होती हैं वहां पर लोग इसी तरह से करते हैं कि उसका नहीं मिला तो दूसरा पहन लिया और चले गए, फिर वापस आके उधर कहीं और उतार दिया। ये अमल कैसा है? इससे वैसे तो परेशानी होती है, तो मतलब क्या करना चाहिए ऐसे इन मुकामात पर? क्या इसका हम लोगों को अगर क्या जूता करना चाहिए? एक आपके पास है, दूसरा दूर पड़ा हुआ है, तो एक को पकड़ कर चली जाएं, वहां से जाकर दूसरा उठाएं और फिर पहन लें। दूसरी बात यह है, अगर जूता गुम गया है किसी और का मत पहने। वहाँ मुझे ये अजीब लगा, ये बात मारूफ है लोगों के यहाँ कि यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं, जो सामने आता है बस पहनो और चले जाओ। तो ऐसी बात नहीं है। आम मसाजिद में जूता उठाना गुनाह है, तो मस्जिद हराम में क्या छोटा गुनाह होगा एक हाजी को परेशान करना, तंग करना, कि वो जूता अपना बेचारा लेकर आया और कोई उसका पहन कर चले जाए, उसको तो परेशानी होगी इस पर। सारी मोहतरम जी बिल्कुल जैसे एतकाफ में हम बैठे हैं, तो अब जूते के बगैर तो वॉशरूम और वहां से वापस, तो उसमें क्या किया जाए? मतलब इतनी
जितना भी संभाल लें वो कभी सफाई के टाइम पे कभी गायब हो जाएगा, या फिर मतलब क्या करना चाहिए वहां से हम? बस वहाँ ये मसला रहता ही मतलब है जूता पहन, दाएं बाएं होने का। तो किसी का पहन छोटे सकते हैं छोटे, फिर ऐसे नहीं मजबूरी नहीं में? नहीं, किसी का नहीं पहनना है। किसी का अच्छा अगर वैसे पहनना है उस्ताद तो मोहतरम, उसकी, किसी का बात पहनना है तो उसकी इजाजत के साथ पहन ले, बात खत्म अच्छा होगी। तो उस्ताद बाथरूम मोहतरम, में। मक्का में जाते हैं हम खाने काबा में, हम बाहर निकलते हैं, जूते होते ही हैं, चप्पलें हमारी हो जाती, चाहे कितने शेल्फ में रहते हैं, आपको भी तजुर्बा होगा। साथ लेके तो बिल्कुल, मेरे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मताफ में जूते लेकर जाऊं या चप्पल लेकर जाऊं। तो उसके लिए मतलब समटाइम्स ऐसा होता है, मताफ के बाहर आपको पता है मस्जिद के बाहर बहुत गर्मी होती है, मतलब फर्श भी जल रहा होता है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि किसी की चप्पल पहनकर हम थोड़ी दूर चले जाएं और फिर उसके बाद नहीं, अपनी, ना फर्श जल रहा होता है और ना नहीं किसी मताफ के और की बाहर, नहीं बिल्कुल जल बाहर रहा मस्जिद के होता, जहाँ वो है। नहीं जल रहा होता। मेरे साथ हुआ था, बहुत हाँ तेज वो धूप थी और पाँव बहुत जल मस्जिद, रहे थे। हाँ मस्जिद से बाहर आप कह सकती हैं, लेकिन मस्जिद की हद तक तो नहीं है। मस्जिद के बाहर ही कह रही हूँ मैं, अच्छा मस्जिद के अच्छा, बाहर ठीक ही है कह रही ठीक है। हूँ। हाँ किसी का जूता जो है ना उसकी इजाजत के साथ पहन लें। लेकिन वो मक्के में आपने देखा होगा कि वो तो सफाई करते में सारे ही जूते उठा के फेंक देते हैं, फिर वो दूसरी चप्पलें रखते हैं कि भाई इसमें से पहन लो। वो दूसरी हम नहीं लाके रखते, वापस रख देते हैं। वही होती हैं, एक साइड पे रख दी जाती हैं। आप वहां जाएं और अपनी जूती तलाश करें, अगर तो उनमें से आपको आपकी जूती मिल गई है तो ठीक है, किसी और आज का तक माल नहीं हलाल मिली। कैसे हो गया। आज तक नहीं मिली, नहीं नहीं, वापस रख दी, वहीं रख दी, चप्पल खरीद के वो मैं वापस रख सादा दी। से आपको बताता हूँ, इसका होता ये है कि पता होता है जो उम्रे पे जा रहे होते हैं ना, लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं, तो जूती के भी दो तीन चार जोड़े साथ ले जाया करें। वहाँ ये मसला बनता रहता है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। एक उठाया जाए तो दूसरा पहन लें, ना बहुत ज़्यादा महंगा लेकर जाएं, अगर इस चीज़ नहीं का वही खर्चा ही है तो। मेरा मतलब यही था, मतलब वो तो फिर छोटा सा पैक भी तजुर्बे एक होते साथ गए, मिलता है, मताफ तजुर्बे में लोग होते खड़े गए तो होते फिर हैं, साथ रखते गए। लेकिन यह है मताफ कि में लोग कोशिश। खड़े होते हैं जिनके पास शापर होते हैं और इस तरह के छोटे छोटे बैग होते हैं, कीस थैलियां वगैरह होती हैं, वो दे रहे होते हैं कि अपना जूता इसके अंदर रखें। लेकिन दिल नहीं मानता, मताफ में तो चप्पल को लेके जाना, मेरा दिल तो नहीं मानता है वहां पे चले वो आपका शेख नहीं साहब। मानता, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक तो कल के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, पहली बात ये थोड़ा कि सा ऊंची बोलें। जी सर, मैं कह रही हूँ दो कल के टॉपिक से रिलेटेड है, कल के लेक्चर वाले। कि जी, पहला ये कि अगर हमारा कोई भी हमें हदीस वगैरह का रेफरेंस देता है तो वो ऑब्वियसली हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, इतना हमारे पास है कि कोई मतलब मटेरियल है। लेकिन अगर कोई वाकयात बताता है तो वो हम क्रॉस कैसे चेक करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता वाकयात का। क्योंकि कल जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम कल पढ़ा था कि जो है वो हम खड़े होकर पानी पी सकते हैं, वरना मैंने तो ये पढ़ा था इससे पहले कि इवन हजरत अनस बिन मालिक का नाम बताया हुआ था कि उनसे किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब बैठ के तो पानी पीने का हुक्म दिया है, तो खड़े होके पानी पीने के बारे खड़े होके खाना खाने के बारे में क्या फरमाया है। तो फिर आगे से उनका जवाब भी इवन इस सेंस में लिखा हुआ था कि खड़े होके खाना खाना पानी पीने से ज्यादा बदतर है। तो ऑब्वियसली ये कोई रेफरेंस नहीं होता, और फिर कोई इस तरह का वो कोई भी टॉपिक हो तो हम वो सर्च कैसे करें। ठीक है, सेकंड मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने ये चीज़ मैंने नहीं सीखी कि जो हमेशा कम तर होगा उसके हिसाब से चलना है। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके बारे में क्या होगा कि नॉर्मली हम कोई भी इख्तलाफ हो जाए तो वोटिंग करवा लेते हैं कि जो मेजोरिटी साथ देती है उसके साथ हम होते हैं या उसकी बात को जाना जाता है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या होगा कि हम मेजोरिटी का साथ देना है या वो जो भी होगा सिस्टम। और आज की टॉपिक से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा है ना कि सॉक्स जो हैं वो नीचे से ऊपर पहनते हैं, तो शलवार भी तो ट्राउजर भी तो नीचे से ऊपर पहना जाता है, तो वो नीचे क्यों रखना जरूरी है, काइंडली इसका बताओ। आपने पहला सवाल क्या किया था। कि हमें अपने जो वाकयात होते हैं वो कहाँ से हम सर्च करें, क्योंकि अगर किसी ने वाकया हमें बता दिया है किसी भी सहाबी का या किसी जगह का, तो वो ऑब्वियसली हदीस में अगर ना ज़्यादातर हुआ। चूंकि ये इल्म हमारा अरबी में है, तो उसमें तरीका है सर्च करने का, कई सॉफ्टवेयर हैं उसके। आपको स्क्रीन पे इस वक्त ये नज़र आ रहा है, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरबु काइमन व काइदा। जी सर, नजर आ रहा है। नज़र आ रहा है, ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है।
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیتے تھے، بیٹھ کر بھی پی لیتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، کننا نأکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھاتے تھے جبکہ ہم چل رہے ہوتے تھے، ونشربو، اور ہم پی بھی لیتے تھے، ونحن قیام، جبکہ ہم کھڑے ہوتے تھے۔ یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو جب بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے دونوں طرح کی روایتوں کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ کا پہلا سوال یہ تھا۔ جی سر۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ نے بولا تھا کہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے، یہی سوال تھا نا؟ تو جی اس کی سر، جیسے آپ نے کل کلاس میں جو بات ہوئی ہاں، تھی۔ وہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے پڑھی تھی، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے، اس کے ساتھ جو موجود نعمتیں ہوتی ہیں اس پر آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اگر اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کی تین خرابیاں میں نے ساتھ بتائی تھیں، کیا کیا بنیادی تین خرابیاں بتائی تھیں۔ یہ کلیئر نہیں ہے؟ کوئی اس میں اشکال ہے؟ نہیں سر، وہ بات کلیئر ہے، لیکن جو ہمارے ہاں کسی عام زندگی میں کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو اس میں جو ووٹنگ کرائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں نا کہ جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ مطلب اس چیز کو یہ ووٹنگ دیکھا کا جائے گا۔ سلسلہ اسلام میں ہے ہی نہیں، تو اسلام، ہاں جی یہی پوچھنا تھا کہ یہ اس میں ہے ہی اسلامک نہیں، کسی کانٹریبیوشن طرح ہے۔ کا بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا جو آج کے لیکچر سے تھا کہ شلوار بھی تو نیچے سے اوپر پہنی جاتی ہے۔ نہیں، وہ یعنی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، وہ جدا ہوتی ہے، جبکہ جو جرابیں ہیں، ساکس وغیرہ ہیں، موزے وغیرہ ہیں، یہ باقاعدہ اس کے ساتھ ہم نے قدم کو چھپانا ہوتا ہے، اس کا تو معاملہ ہی اور ہے، اس کا تو معاملہ ہی اور ہے، اور وہ تو ثابت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی جی، جزاک اللہ، میرا کلیئر ہو گیا۔ جی، ہم اختتام کریں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔